in first part we have discussed about the I have discussed about the control and coordination in plants, and our next chapter is about control and coordination in animals. Animals are a complex body, so their mode of life that is also very complex in comparison to plants. So to regulate all the vital activities in the animals, complete particular system exists in the animals, that is termed as the nervous system. Okay, नर्वस सिस्टम है, अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो बेसिकली नर्वस सिस्टम उसको हम 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. Okay, first है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज़ द सेंटर हाउस ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यूनिट, एंड इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सेकंड इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इट इन्वॉल्व्स ऑल द नर्व्स, cranial nerves and spinal nerves. Cranial nerves and those arise from the brain, and the spinal nerves and those arise from the spinal cord. Okay, and the third part is autonomous nervous system. Autonomous nervous system, it further can be classified to the sympathetic and parasympathetic nervous system. Okay, first we will discuss about the central nervous system. The central nervous system है, it consists of brain and spinal. The brain, it consists of 3 major parts. It can be divided into 3 parts, that is forebrain, midbrain and hindbrain. Okay, first forebrain. Forebrain है, it is formed of 2 hemisphere-like structures that are termed as cerebral hemispheres, and 2 cerebral hemispheres collectively form a cerebellum. Okay, cerebellum है, it is the largest part of the brain, and it control all our voluntary actions, and it is responsible for our IQ, our intelligence, our memory. Okay, our all voluntary actions. Okay, now midbrain है, it just joins the forebrain to hindbrain. Hindbrain है, it consists of 3 main parts, that is cerebellum, medulla and pons. Cerebellum है like cerebrum. It is also formed of 2 hemispheres, that are cerebellar hemispheres, and 2 cerebellar hemisphere हैं, they collectively form the cerebellum. Okay, the cerebellum है, it just lies below the cerebrum, but it is much smaller than the cerebrum. Then comes the pons. Pons है, it act like a bridge, because the meaning of pons is bridge. Okay, so pons है, it serves like a bridge between the cerebellum and the spinal cord, that is the cerebrum and the midbrain. Okay, so it just relay the impulses from one part to the another part of the brain. Then it is medulla. Medulla है, it lies below the cerebellum, and the medulla है, it is responsible for all our involuntary actions. यानी कि हमारे जितने भी involuntary actions हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन है, हार्ट बीट्स है, या हमारा डाइजेशन है, हमारी मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट ऑफ स्मूथ मसल्स है, ऑल इज़ कंट्रोल्ड बाय द medulla. Okay, and if we talk about the functions of the cerebellum, then it assists in the voluntary actions. Okay, it make the voluntary actions to very precise, यानी कि उनको वो हाई प्रिसीजन है वो प्रोवाइड करता है. ओके, अब अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारे नर्व्स हैं वो मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं. 2 टाइप की नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन. ओके, अदरवाइज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, उनके बारे में हम आगे भी और डिस्कस करेंगे. तो क्रेनियल नर्व्स हैं जो ब्रेन से ऑरिजिनेट होती हैं. टोटल 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है वो एग्जिस्ट करती हैं, और ये हमारे जो स्कल रीजन है उसमें ये मेनली सप्लाई करती हैं. एंड द स्पाइनल नर्व्स हैं, टोटल 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स है वो एग्जिस्ट करती हैं. स्पाइनल कॉर्ड से ये ऑरिजिनेट होती है, और हमारे जितने भी पेरिफेरल ऑर्गन्स हैं उन सबको ये सप्लाई होती हैं. ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑल ऑफ द गैंग्लियंस. देन व्हाट इज़ अ गैंग्लियन? गैंग्लियन है, ये एक नर्व्स का बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, और जो बर्ड्स आपस में नर्व्स की
हेल्प से ही आपस में जुड़े हुए होते हैं, दैट इज टर्म्ड एज गैंग्लियन। तो गैंग्लियन का एक नेटवर्क सा होता है, वही हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो बनाता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उसको हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई हाई एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ रही है, तो उसके हमारी सर्कुलेटरी रेट है वो भी बढ़ रही है। सर्कुलेटरी रेट बढ़ रही है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी हार्ट बीट्स बढ़ती हैं। तो यानी कि हार्ट है उसकी हार्ट बीट्स का पर मिनट नंबर है वो बढ़ना है, यानी कि हार्ट बीट रेट बढ़नी है। तो उसके लिए क्या होगा कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इम्पल्सेस भेजेगा और हार्ट है उसकी बीट रेट है वो बढ़ जाएगी। अगर हम अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं और अब हमें हार्ट बीट की वो रेट नहीं चाहिए है, तो पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में वो एक्शन में आता है और वो अपने इम्पल्सेस भेजता है और उसके रिस्पॉन्स में हार्ट बीट है वो नॉर्मल तक आ जाती है। ओके, अब अगर हम नर्व्स हैं उनके टाइप्स की बात करें तो ऑरिजिन के बेसिस पर 2 टाइप की होती हैं, क्रेनियल एंड स्पाइनल, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम फंक्शन के बेसिस पर बात करें तो हमारे नर्व्स हैं वो बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, मोटर नर्व्स एंड सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स वो होती हैं जो हमारे जो रिसेप्टर्स हैं बॉडी में अलग अलग तरह के। अच्छा, अब ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल आवर आई, नोज, ईयर, स्किन, टंग, दीज आर रिसेप्टर्स। ओके, अब सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो रिसेप्टर से कोई भी सिग्नल मिला है उसको हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाती हैं। और मोटर नर्व्स क्या होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स है या मैसेज है उसको इफेक्टर ऑर्गन तक लेके आती हैं और उसके बदले में हम अपना एक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। ओके, अब सेंसरी और मोटर नर्व्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा एक और टाइप की और नर्व्स होती हैं जिनको हम मिक्स्ड नर्व बोलते हैं। मिक्स्ड नर्व यानी कि वो सेंसरी और मोटर दोनों की तरह ही काम कर सकती हैं। ओके, ये मेनली हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें प्रेजेंट होती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो मैसेज है उसे रिले करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इसके बाद हम मोटर न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, वो एक्शन परफॉर्म होता है। कुछ एक केसेस जैसे वॉलंटरी एक्शन होता है कि हमें अपना हाथ है वो हमें कोई सामान उठाना है और हमें अपना हाथ है वो मूव करना है। अगर हम चाहते हैं तो हम करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। यानी कि वॉलंटरी एक्शंस हैं उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे एक्शन भी होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सडन स्टिमुलस की वजह से होते हैं, यानी कि जो हमें एक्सपेक्टेड होता ही नहीं है और उसके लिए हम एकदम सडन रिस्पॉन्स देते हैं। किसी भी स्टिमुलस के लिए सडन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स जो है उसे हम एक पर्टिकुलर नेम देते हैं उस मैकेनिज़्म को, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि किसी भी सडन स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो हम इनवॉलंटरी सडन रिस्पॉन्स देते हैं दैट इज़ टर्म्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन के मैकेनिज़्म की बात करें तो क्या होगा कि सबसे पहले हमारा कोई अफेक्टर ऑर्गन होगा। अफेक्टर ऑर्गन यानी कि जिसने उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को रिसीव किया है। ओके, अब वो रिसीव किया है, फॉर एग्जांपल हमने किसी गर्म बर्तन को टच कर दिया, टच किया यानी कि वो इम्पल्स हमारी स्किन ने रिसीव किया। स्किन यहाँ अफेक्टर ऑर्गन है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनमें इम्पल्स जनरेट होगा और वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो मैसेज को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएंगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस मैसेज को एनालाइज करेगा और वो बदले में एक रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा इम्पल्स की फॉर्म में कि हाथ को वहाँ से हटाना है। तो उसमें क्या होगा कि मोटर नर्व्स हैं वो ब्रेन के मैसेज को हमारे जो इफेक्टर ऑर्गन है वहाँ तक लेके आएंगे। अभी इफेक्टर ऑर्गन क्या होता है? इफेक्टर ऑर्गन वो होगा जहाँ हमारा ब्रेन है उसका इम्पल्स है या उसका मैसेज आके एक्चुअल में एक्ट करेगा और हम अपना एक्शन है वो परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ इफेक्टर ऑर्गन है, हमारे हाथ की मसल्स होंगी जिन पे वो ब्रेन का मैसेज है आके एक्ट करेगा और हमारी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और हम अपना हाथ है वो वहाँ से हटा लेंगे। ये रिस्पॉन्स इतना सडन होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कब ये पूरा मैकेनिज़्म है वो एनालाइज हुआ या परफॉर्म हुआ और हमारा हाथ है वो पीछे एकदम से आ जाता है। इस
इसमें आप और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि सांप को देखते ही एकदम से भाग जाना, या किसी डरावनी चीज़ को देखकर एकदम से चीख निकल जाना। ये सारे के सारे हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, कि जो हम एकदम से सडन करते हैं, एक्सपेक्टेड एक्शंस नहीं होते हैं। ओके, तो दीज आर टर्म्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। अब पूरा पाथवे यानी कि अफेक्टर ऑर्गन, या हम रिसेप्टर बोलें, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, देन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मोटर न्यूरॉन्स, and from motor neurons to the effector organs. The all path covered by the reflex action is termed as reflex आर्क। ओके, अब एक और सिस्टम है एग्जिस्ट करता है जो कि कोऑर्डिनेट करने में या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, दैट इज़ आवर एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम है ये पूरा का पूरा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का बना होता है। वी विल डिस्कस दिस इन आवर नेक्स्ट ऑडियो।